हे गाइस, क्या हाल चाल? नया दिन, नई शुरुआत। फार्मा एमबीए, a target, a goal for many. Just 40 seats in Hyderabad, 50 seats in Naipur Mohali. Altogether 90 seats. Candidates, lot of candidatures for those 90 seats. How will you excel over others? आप ऐसी क्या चीजें करेंगे इन द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू दैट विल हेल्प यू टू एलिवेट एंड escalate your rank and get a seat in Naipur Mohali or Naipur Hyderabad for the pharmaceutical management pharma MBA. So today we are going to discuss few tips, tricks, do's and don'ts and suggestions. First of all, you should know the format that the GD doesn't last for too long or doesn't last for too short. You have to put your points very firmly. अपने points रखो लेकिन aggressively, गुस्से में नहीं. There are two types of communication that matters: verbal and non-verbal. जिस तरीके से आप बोलते हैं, the verbal communication. Non-verbal, your body language, the personality, your hand gestures, everything. Those are included in the non-verbal communication skills. So make sure that either you give an introduction, you begin, or you conclude, and at least once or twice you have some valuable inputs in between the discussion, because that tells that हाँ आपके opinions है, आपके पास कुछ है बोलने को, है ना? So it shows leadership skills, communication skills. So that is very very essential. जाने से पहले एक बार फार्मा की कोई लेटेस्ट न्यूज़ देख लेना, जैसे कोई मर्ज हुई है, कोई कंपनी एक्वायर हुई है, एनी रीसेंट फार्मा न्यूज़. What are the most common topics? AI, a boon or a bane for healthcare? Definitely हम सबको पता है कि artificial intelligence is bringing a revolution in the pharmaceutical industry. इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो अभी आजकल आपने देखा है कि कैसे recent lot of प्रधानमंत्री schemes and lot of different योजनाएं that are useful for the entrepreneurs, for the startup programs. थर्ड, सोशल मीडिया. जी हाँ, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक सोशल मीडिया है, यूट्यूब. सो इज इट गुड और अ बैड? इट्स ऑल अपॉन हाउ यू चैनलाइज इट. वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस. जी हाँ, कोविड 19 में हम सब ने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कितनी अहम भूमिका निभाई थी. सो इज इट गुड so that you can manage things, or things become very disorganized while you are at home? Putting forward your points. Privatization, liberalization, globalization in India, good or bad? ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन फार्मेसी. आपने देखा होगा आजकल तो आप ऑर्डर करो ऑनलाइन, अपोलो, टाटा 1mg, बहुत सारे ऐप्स है, ऑनलाइन बैठे बैठे घर आ जाती है मेडिसिन. ऑफलाइन फार्मासिस्ट की शॉप पे जाना ही नहीं पड़ता. लोकल वर्सेस ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट. So you should have an aspect, an idea, a perspective of pharmaceutical market as with respect to India as well as with respect to the world. मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चल रहा है, टॉप 5 ड्रग्स, टॉप कंपनीज जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क, टॉप डेटा बेसिस. बहुत जरूरी है कि आपको डेटा बेसिस के बारे में पता हो कि डेटा जैसे स्टैटिस्टिका एक इंपॉर्टेंट डेटा है, WHO, ISO, ICH. जैसे आप फार्मेसी में आपके पास ऑथेंटिकेटेड और रेगुलर डेटा होता है, वैसे ही फॉर पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, आपके पास पबमेड, गूगल स्कॉलर वगैरह होता है, NHM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NLM. So different databases for pharmaceutical data, pharmaceutical epidemiological data, everything. सबकी databases आपको मालूम होनी चाहिए. It's very very important. That plays a key role. And always back your questions. जब भी personal interview or GD में आप कुछ बोलो, back it with some statistics. According to WHO, 55% of the people are, है ना, मैंने एक नंबर बोला, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बोला, मैं उनकी नजर में छलक गया कि हाँ, this person knows about the organization, this person is more acquainted with terms of the numbers as well. So that creates a good impression. Drug pricing in India, role of NIPER in pharma education, पेटेंट वर्सेस पब्लिक हेल्थ. बिकॉज आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो ड्रग बना देती है, पेटेंट कर देती है, एंड इतना महंगा बेचती है कि नॉर्मल ऑडियंस उसे खरीद ही नहीं पाती. सो कुछ लोग कहते हैं कि पेटेंट नहीं होना चाहिए, और कंपनीज कहती है कि हमने इतनी मेहनत से इतना खर्चा करके ड्रग बनाया तो हमें पेटेंट चाहिए. सो ये भी एक अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेजेडी टॉपिक है, अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी डिलेमेटस. ई फार्मेसी, अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में वो आपको डेफिनेटली HR राउंड, ह्यूमन रिसोर्सेज, एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू योर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल क्लियर, यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एंड एक छोटा सा इंट्रो बना के जाओ. जैसे a very good afternoon to one and all present out here. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself.
Myself, Payam Bora. I've qualified 9 national level examinations and completed my masters in pharmacology and toxicology from Naipur Mohali. I belong to the city of dreams, Mumbai, where I've completed my higher education and my bachelor's. I'm looking forward for the role of the MBA and pursuing my higher graduation here. इस तरीके का आप एक इंट्रो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, उन्हें पता चलेगा that you have prepared for something. Do not bluff, be very honest. कोई चीज़ पता है तो पता है, नहीं पता है तो सीधा मना कर दो. को घुमाना नहीं है या फिर झूठ नहीं बोलना है. That will create a very very mischievous perspective and persona in the eyes of the other person who's interviewing you. Body language, जी हाँ, आई मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स, लेग्स, ऐसे नहीं कि पैर हिला रहे हैं, हाथ मूव हो रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं बातें करते करते, नाखून चबा रहे हैं. These are all signs of low confidence. These are all signs of lack of focus and attention. ठीक है, so this should be strictly avoided. And they will ask you कि MBA in pharma क्यों करना है, pharma MBA नाइपर से क्यों करना है. इसके जवाब आपके पास होने चाहिए. नाइपर is a well known, renowned, recognized institute. The faculties that teach over here have a well versed network and connectivity. ये कुछ reasons है, कुछ आप खुद से भी ढूंढेंगे. Absolutely. Where do you see yourself? आप अगले 5 सालों में आपको कहाँ अपने आप को देखते हैं? आपके शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? इसी तरीके के क्वेश्चंस वो जरूर पूछते हैं. टेक्निकल में ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बताओ, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में बताओ, फार्मेसी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड देखने मिला है. जैसे आजकल आप देख सकते हो AI बेस्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन, आजकल बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, ये सारी चीजें जो है ट्रेंड में आ रही है ना. और जो ऑर्थोडॉक्स तरीके है वो नहीं, वो थोड़े से वेव ऑफ हो रहे हैं. सो दे माइट आस्क यू समथिंग दैट आपका ट्रेंड देखने के लिए कि आप कितना अपडेटेड है. देन आपको पूछेंगे कि आपकी सपोज आपके CV, एक CV होगी तो पूछ लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या है. सपोज आपने लिखा होगा लीडरशिप स्किल्स, पूछ लेंगे कैसे, हम कैसे मान ले तुम में लीडरशिप स्किल्स है. तो आपको कोई एग्जाम्पल बताना होता है कि हाँ मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था, मैं इसका टीम लीडर था. How do you manage stress and pressure? Because pharma MBA is all about handling the stress and pressure with ease and in an amicable way. So आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं. And lastly, preparation resources, you can check out the Hindu, Express Pharma, Pharma Pulse, Pharma Biz. In short, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं so that you can prepare well. And also हमारे चैनल पे जुड़े रहिए because इसी तरीके के इंटरेस्टिंग नाइपर मोहाली के काउंसलिंग के वीडियोस, प्रेपरेशन वीडियोस, एवरीथिंग, कौन सी रैंक पे कौन सा नाइपर मिलेगा, प्लेसमेंट्स, पैकेजेस, everything we are going to discuss on this channel. So see you soon and thank you so much for watching the video, everybody.